Good morning, students. Today we will start our next part number 2. As the staffing has been already started, we have seen the meaning of staffing and then we have seen the importance of staffing. Today's topic is staffing as a part of human resource management. We will see how staffing has become an important function in this point. So we will compare the traditional method and modern method also over here. I have written some points. We will go with this with one by one. The first point itself has been mentioned over here. Functions which all managers have to perform, as all managers directly deals with people. As in the message I would be saying this, the staffing as part of human resource means human resource department is a huge department in that the common people are being hired with a specialized person who are expert in human resource. Now, we will go with that functions which all managers have to perform, as all managers directly deals with the people. I would say this, that earlier times when organization needs to appoint certain people, they go with the all management's decision. What happens over here, as a manager, I appoint a person by evaluating different things, by asking questions, by going to different views, and in the end I decide whether the person is suitable for the job or not. Here the staffing function has to be performed by all managers by appointing the people. Next part is I am beginning over here. Staffing refers to this kind of role played by all managers in small organizations. As I would suggest you that if you go to a small organization for interview purpose, the single manager will take your interview in different sessions and they will judge you whether you are suitable or not. As for the large organization, the different persons comes in the different levels of interview. As it has been mentioned that staffing is to be played by all managers in small scale industry. और I would say that मैं अगर एक कंपनी में काम करता हूँ और वो कंपनी स्मॉल लेवल की है, तो वहाँ पे एक या दो मैनेजर मिलके ही डिसाइड करते हैं कि कंपनी के अंदर सूटेबल है कि नहीं है. अगर एक पर्सन सूटेबल है तो इसको कौन सा जॉब देना चाहिए और कैसा जॉब देना चाहिए. तो ये टर्म यहाँ पर ऐसा कहता है कि स्टाफिंग का मकसद यहाँ पर ये है कि जो मैनेजर्स होते हैं वही इंटरव्यू क्रैक करवा सकते हैं या फिर इंटरव्यू ले सकते हैं. सामने वाले एम्प्लॉय को वो जज करते हैं विद द डिफरेंट लेवल स्किल्स. अलग अलग स्किल्स को वो एब्जॉर्व करते हैं, अलग अलग टॉक करते हैं, अलग अलग डिग्रीज को मैच करते हैं और ये पता करते हैं कि वो सूटेबल है कि नहीं वो परफेक्ट जॉब के लिए. स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग के लिए पढ़ा था राइट पीपल एट द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन ऑन द राइट टाइम. ये हमने पॉइंट पढ़ा था. उसी पॉइंट को लेके ये लोग एनालिसिस करते हैं. लेकिन HRM स्टाफिंग का पार्ट कैसे हुआ है, स्टाफिंग HRM का पार्ट कैसे हुआ, वही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है. An organization grows and the number of people employed increase. A separate department called Human Resource Department, in forming which consists of specialists who are expert in dealing with the people. Example, MBA in HR. In this point, I would say that whenever the organization starts growing and employees are being hired in a huge number, then the separate department has been created as Human Resource Department, where the people who are specialized in human resource, who are very much aware about the situations, they can communicate with the different level of people, they are considered as Human Resource Department. Here, who are expert in dealing with the human beings. इंटरव्यू क्रैक होते हैं, इंटरव्यू क्रैक करवाने के लिए या फिर इंटरव्यू लेने के लिए ये जो मैनेजर्स होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और डिफरेंट लेवल्स पे कम्युनिकेट करते हैं. इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर होता क्या है एग्जैक्टली, एक या दो मैनेजर मिलकर इंटरव्यू करते हैं और लास्ट में बॉस काम होता है और बॉस उसके अंदर सैलरी डिस्कस करता है. दैट्स इट. वेयर इज इन
human resource department, the different people comes together, they go with the interview and then they go with the skill testing and then they go for different tests, and after that they make an analysis report. In that report they decide whether the person is suitable for the particular job or not. It has been mentioned in this way. अगर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है ना तो काम भी बढ़ जाता है, तो जितना ज़्यादा काम बढ़ेगा तो उसके लिए आपको एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर एक मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वही इंटरव्यू लेगा, नॉट एट ऑल। इसीलिए यहाँ पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HRM डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अल्टीमेटली ये HRM जो होता है वो ऑलमोस्ट ये क्लैरिफाई करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज को हायर करना है, कब हायर करना है और कितनी रिक्वायरमेंट्स है, और रेगुलर इंटरवल में चेक भी करते रहते हैं। तो यही एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया जाता है HRM के थ्रू। ह्यूमन रिसोर्स का एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो MBA इन HR, MBA इन HR मतलब वो पर्सन एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट इस वे में है कि वो इंटरव्यूज ले सकता है और जज कर सकता है कि वो पर्सन आपकी कंपनी के सूटेबल है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इन फैक्ट earlier definition of staffing is focusing narrow only hiring people for vacant positions। इतना पॉइंट हमें समझते हैं। पहले के दौर में ट्रेडिशन वे में पहले आप अपॉइंटमेंट्स देते थे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, वैकेंट प्लेस के लिए, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जगह खाली है उस जगह पे आप हायरिंग करते थे पर्सन को। तो यहाँ पर जो पॉइंट बोला है कि स्टार्टिंग का पहला मीनिंग जो होता था कि अपॉइंटिंग द पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, दैट्स इट। वहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं करते थे, वहाँ पे कोई जॉब सेटिस्फैक्ट्री के लेवल के बारे में बात नहीं करते थे, इवैल्यूएशन की बात नहीं करते थे। लेकिन आज जो मॉडर्न वे में हो गया है, मॉडर्न में क्या हुआ, स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ HRM। आज मॉडर्न टर्म्स के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो HRM जो है वो अब आप स्टाफिंग के साथ में करते हैं। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, which encompassed not only staffing but also number of other specialized services। यहाँ पे जो स्टाफिंग होती है HRM के अंदर, इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट करना नहीं होता, उसके अलावा दूसरे सर्विसेज भी परफॉर्म करते हैं, जैसे जॉब इवैल्यूएशन करना, बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो एम्प्लॉय है उसका काम बराबर है कि नहीं, वो जितना खर्चा हम उसके ऊपर कर रहे हैं उसका रिटर्न बैक हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जॉब इवैल्यूएशन है। उसके बाद में परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि बंदा परफॉर्मेंस में कितना अच्छा है, इनको जो टास्क दिया जाता है वो कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं करते, ये सब HRM आज करता है। हर बंदा जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसका जॉब एनालिसिस होता है। नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ वी विल सी what happens as a human resource management, what they do. In this, human resource management involves procuring, developing, maintaining and appraising a competent and satisfied workforce to achieve goals of the organization effectively and efficiently। इस पॉइंट के अंदर सिंपल सा टर्म यूज करते हैं, मैं करते हुए सर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि एक मैनेजर है जो HRM डिपार्टमेंट हैंडल करता है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो राइट पर्सन को सिलेक्ट करे, राइट जॉब के लिए उसकी गुड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ में वो पर्सन को राइट टाइम पे आपको लाना है। उसके अलावा ये टर्म तो हम स्टार्टिंग के लिए पढ़ते ही हैं। तो HRM मैनेजर जो है उसका मेन मकसद यहाँ पर ये होता है कि वो पर्सन को लेकर आए, उसको गाइडेंस देते जाए, कंपनी के गोल्स को एनहांस करने के लिए उसको टारगेट देते जाए। यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अप्राइजिंग अ कॉम्पिटेंट एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। HR मैनेजर क्या इस तरह से प्लानिंग करना होता है कि एम्प्लॉय को कंपनी के बारे में बताया जाए, कंपनी के लिए गाइडलाइंस दी जाती है, उसके बाद में उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो जॉब प्रोफाइल के साथ में फैमिलियर किया जाता है। जब एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर जॉब के साथ में फैमिलियर हो जाता है तब उनको टास्क दिया जाता है, और टास्क देने का मेन मकसद यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑब्जेक्टिव जो है या गोल या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। तो यहाँ पर कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉय जब फैमिलियर हो जाता है तो उसको टास्क देना शुरू कर दिया जाता है HRM की तरफ से,
और HRM और मैनेजर मिल के काम करते हैं एक एम्प्लॉय को ग्रो करने के लिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल टैलेंटेड पर्सन्स वर्क ऑन करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अचीव हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स के बारे में बोला गया है। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल हर एक इंडिविजुअल का एक पार्ट है। हर एक इंडिविजुअल को नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना ही पड़ता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है तो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी वो फुलफिल कर लेगा। इसीलिए ये पॉइंट को बोला है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है, इट्स पर्पस इज टू एनेबल एवरी ह्यूमन बीइंग वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक हिज बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन। HRM डिपार्टमेंट ये चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेके चलता है, बिकॉज क्योंकि जब वो अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज के साथ वो डिस्कस करते हैं और वो बेस्ट पॉसिबल पर्सन को ही अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उसी हिसाब से उनको अपॉइंट भी किया जाता है। इसीलिए उनका एक मेन मकसद ये भी होता है कि जो एम्प्लॉयज उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट दे, अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वो बेस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करेगी। और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो साथ साथ में उनका ऑब्जेक्टिव जो है या जो उनका टारगेट है वो भी अचीव होगा। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये सारे प्रोसेस को भी ध्यान में रखती है। इसके अलावा कौन कौन से एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में। एक्टिविटी परफॉर्म बाय HRM। एक्टिविटी इन द सेंस HRM डिपार्टमेंट का कुछ गोल्स है, टारगेट्स है, वो अचीव करने के लिए उन्होंने ये स्टेप्स को फॉलो करना है, या ये स्टेप्स को वो अपने डिपार्टमेंट के साथ में एनालाइज करते हैं या काम करते हैं। रिक्रूटमेंट ये HRM डिपार्टमेंट हमेशा करता है। हर डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब वैकेंट है उस अकॉर्डिंग वो रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर एडवर्टाइजमेंट, फिर बाद में सिलेक्शन, इंटरव्यूज, शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद में बॉस राउंड, देन सैलरी डिस्कशन, ये सब कुछ रिक्रूटमेंट के थ्रू कर लेते हैं। एक अपॉइंट करना मेन मकसद होता है, लेकिन अपॉइंट करने के लिए उनका जो मेन स्टाफिंग का जो मेन पॉइंट है, राइट पर्सन इन द राइट जॉब, द राइट क्वालिफिकेशन इन द राइट टाइम, ये टर्म को वो करते ही हैं फॉलो, और फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबल एम्प्लॉय को अगर हायर करते हैं तो उनका जो मेन टारगेट है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइजिंग जॉब। अब एनालाइजिंग जॉब क्या है? ये HR डिपार्टमेंट का रेगुलर वर्क है। हर डिपार्टमेंट के साथ में इंटरकनेक्ट होते हैं, और इंटरकनेक्ट करने के बाद में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि एम्प्लॉयज की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं, और एनालाइज करने के बाद में ही वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव पॉलिसी। अब यहाँ पर सैलरी रिलेटेड, बाद में एक्स्ट्रा इनकम फॉर गेटिंग टारगेट अचीव, ये सब कुछ के लिए प्लान किया जा रहा है HRM की तरफ से। कौन से पार्ट के लिए, कौन से जॉब के लिए कितनी सैलरी देनी चाहिए, कितना कंपनसेशन देना चाहिए, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, EPFO कैसे देना चाहिए, ये सब कुछ HR डिपार्टमेंट प्लान करता है। इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव प्लान इन द सेंस ये सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप टारगेट अचीव कर लेते हो, उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा आप सेल करोगे उसके ऊपर आपको इतना पैसा मिलेगा या इतना परसेंटेज मिलेगा, ये सब इंसेंटिव प्लानिंग है। ये टारगेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो HRM का है। HRM ये प्लान्स बनाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अब HR डिपार्टमेंट जॉब एनालिसिस क्रिएट करता है, फिर बाद में जॉब इवैल्यूएशन चेक करता है। जॉब इवैल्यूएशन के बेस पर HRM डिपार्टमेंट ये भी डिसाइड कर सकता है कि कौन से एम्प्लॉय को आपको ट्रेनिंग देनी है और कौन से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। उस अकॉर्डिंग ही वो प्लान भी कर रहे हैं, और प्लान करने के बाद में जो सूटेबल कैंडिडेट है उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भेज दिया जाता है। मेंटेनिंग लेबर रिलेशनशिप एंड यूनियन रिलेशनशिप। HR डिपार्टमेंट लेबर के साथ में भी गुड रिलेशनशिप बनाना चाहता है और यूनियन के साथ में भी गुड रिलेशनशिप रखना चाहता है। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो कंपनी को ही नुकसान होगा, इसलिए वो दोनों ही डिपार्टमेंट्स के साथ में रेगुलर कोऑर्डिनेट करता है, और कोऑर्डिनेट करके ये ध्यान में रखता है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टेबल रहे
और मैनेजर हर चीज़ को फुलफिल कर सके होंगे। नेक्स्ट पार्ट है हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। अब ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स कंपनी के रिलेटेड भी हो सकती है, कंपनी के बाहर भी हो सकती है। वो सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फिर बाद में कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लेंट हो सकती है। ये सारी कंप्लेंट्स एचआर तक पहुंचती हैं और एचआर ये सारे कंप्लेंट्स की सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करता हूँ तो एम्प्लॉय के अंदर वर्किंग कंडीशन अच्छा है कि नहीं अच्छा है वो भी ध्यान में रखना होता है। एम्प्लॉय जो है वो हैरेस हो रहा है या सामने वाला कोई उसको हैरेस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये सब कुछ एचआर करता है। काउंसलिंग करना एचआर का सबसे मेन मकसद जो होता है वो काउंसलिंग करते रहना। कोई पर्सन ज़्यादा ट्रबल में तो नहीं है, उसकी ट्रबल्स को सॉल्व कैसे किया जाए ये एचआर डिपार्टमेंट ध्यान में रखता है, काउंसिल करते रहते हैं। काउंसिल करने का मेन मकसद यहाँ पे ये होता है कि जो एम्प्लॉय है वो क्या सोच रहा है उसको एनालाइज करना और एनालाइज करके उससे बेस्ट रिजल्ट निकलवाना, ये एचआर डिपार्टमेंट करता है। प्रोवाइडिंग अ सोशल सिक्योरिटी, अल्टीमेटली कोई भी अगर कुछ बुरा वक्त आ गया तो उस टाइम पे भी एचआर डिपार्टमेंट ये एश्योर करता है कि अगर कुछ बुरा वक्त हो जाता है या इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम पे पेमेंट एचआर डिपार्टमेंट कर दे। या ऐसा कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी एचआर डिपार्टमेंट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। डिफेंडिंग कंपनीज एंड लॉ सूट्स। अब डिफेंडिंग इसका मकसद यहाँ पर सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना और साथ में कंपनी के कुछ प्रॉब्लम्स जो कस्टमर के साथ में है उसको सॉल्व करना एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एग्जाम्पल ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई कंप्लेंट कर देता है या कोर्ट में कंप्लेंट हो जाती है तो एचआर डिपार्टमेंट या एचआरएम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी कंपनी को डिफेंड करे और डिफेंड इस तरह से करे कि अपनी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी कंपनी का जो इमेज है वो खराब ना हो। इसी बेस पे हम लोगों ने स्टाफिंग एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा, स्टाफिंग एज ए ह्यूमन रिसोर्स हम लोगों ने पढ़ा। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप एज ए स्टाफिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।